Hello to all my dear FYPSC microbiology students. Welcome to the another video lecture. So in the last lecture we have started the cultivation of viruses, and we have already learned how to cultivate the viruses using the animals, which we called as the animal inoculation. In this lecture we are going to study the two more techniques of cultivation of viruses. One is the embryonated eggs and second one is the cell culture. Okay, so let's start. So we already have completed the animal inoculation part, and now we will see how to cultivate the viruses using the embryonated egg. Okay, just a normal egg which we have in our home or at our home, or we can see in the daily market, but just that we use the chicken egg. Okay, chicken egg is used, embryonated egg is used. That means egg is bit older. Okay, it is about 7 to 12 days older. Okay, now this technique of inoculation or technique of cultivation was discovered by Goodpasture in 1931. Okay, he used the hen's egg for the cultivation of viruses, and this technique is employed up till now. Okay, nowadays also this technique of cultivation is used in the laboratory for studying the viruses. Now this technique each generally depends on the type of the egg which is used. Okay, so for that thing we need to take care that egg should be about 7 to 12 days old. Okay, then because 7 to 12 days old egg may have the embryo in it, और this technique का नाम ही क्या है, embryonated egg technique. So that's why we need to have a egg that is embryonated or is having any kind of embryo inside it. Okay, that matters. Now for the inoculation, okay, firstly हमें क्या करना है, take the egg, embryonated egg which is around 7 to 12 days old. Firstly disinfect it with using the iodine or some kind of the disinfectant. Firstly, very much of important technique. When you are a microbiology student, we need to know everything which we use in the lab should be disinfected. Okay, for that thing we need to firstly wipe up the egg using the disinfectant, okay, like iodine. Okay, then after that we penetrate it using a small drill. एक ड्रिल आता है, एकदम छोटा होता है, उसकी मदद से आपको उसमें एक होल बनाना है या फिर पेनिट्रेट करना है. आफ्टर दैट we will inoculate the virus using that hole. Okay, जहाँ पे आपने होल बनाया उसमें से आपको वायरस को इनोकुलेट करना है. इनोकुलेट होने के बाद उस एग को क्लोज करना है यूजिंग सम पैराफिन पेपर और सम जिलेटिन. हमको उस होल को क्लोज करना है फॉर मेंटेनिंग द असेप्टिक कंडीशन, एंड देन इंक्यूबेट इट एट 36 डिग्री सेल्सियस. इंक्यूबेटर में आपको उसको रख देना है फॉर अराउंड 2 to 3 days. ओके, सो क्या करना है, पहले तो एग को क्लीन करना है यूजिंग एनी डिसइंफेक्टेंट लाइक आयोडीन. आफ्टर दैट वी यूज अ स्मॉल ड्रिल टू मेक होल. ओके, होल बनाने के बाद उस होल में वी आर गोइंग टू इनोकुलेट द वायरस. ओके, aseptically. Now after the inoculation, seal that hole using some paraffin or gelatin and keep that egg into the incubator. Okay, for 2 to 3 days. Now the incubation period is let to pass off. Okay, after the passing of incubation time we are going to take that egg को incubator के बाहर निकालना है. After 2 to 3 days let the incubation period pass off, and then after that we will take the egg. We will observe that embryo. Okay, observe that embryo or that egg for the virus. Okay, for the viral infection. Okay, so now incubation होने के बाद हमने वो egg निकाल लिया, उस egg को observe किया या उस egg में जो embryo है उसको observe किया for the infection or for the symptoms, and then we are going to get that how the virus causes the infection or the virus can be cultivated using the embryonated egg. Okay, this is the important thing to remember. Now viral growth and multiplication in the egg embryo is indicated by the death of embryo. Okay, means what, अगर वो एम्ब्रियो डेड हो चुका है, उस पर कुछ लेशंस दिख रहे हैं या फिर उस पर कुछ वैसे रैशेस दिख रहे हैं, आपको कुछ मार्क्स दिख रहे हैं, या फिर वो डेड है, तो वी कैन कंक्लूड दैट वायरस इज बीन ग्रोन और वायरस इज बीन कल्टिवेटेड. ओके, देन दी वायरसेस जो है आप
डिफरेंट पार्ट्स में कल्टिवेट कर सकते हो एग के, ठीक है। अब वो कौन सा पार्ट है या कौन से वायरस कौन से पार्ट में कल्टिवेट किए जाते हैं, वी आर गोइंग टू सी। तो what are the steps? Let us rewind. So firstly we will clean the egg, okay, using some iodine, okay, or any kind of disinfectant. Now after cleaning we will make a hole in it using some small drill, okay. After the hole making or making any hole, we are going to inoculate the virus through that hole, okay. After the inoculation, what we will do, we will close that hole using some paraffin or using some kind of the, we say, gelatin. Then after the closing of the hole, take that egg carefully and keep it into incubator at 36 degrees Celsius for 2 to 3 days or 2 to 6 days, okay. After the incubation, appropriate incubation, we are going to take the egg out, okay. Then we will observe the embryo for the virus growth, okay. And how we will come to know that virus has been grown or not? तो उसके ऊपर we will see the lesions, we will see some marks, some kind of the rashes, or the death of embryo can indicate the virus is been grown, okay. तो यही चीज़ आपको परफॉर्म करनी है। तब अब अगर आपको जो टाइप का वायरस आपको ग्रो करना है उसके बेसिस पे आप इनोकुलेशन कर सकते हो, कि आप यहाँ पे देख सकते हो ये एग है, ठीक है। इसके ऊपर आपको, इसमें आपको वायरस का इनोकुलेशन करना है, लेकिन कौन सा वायरस इनोकुलेट करना है उसके बेसिस पे आप यूज़ कर सकते हो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एग, ओके। तो अगर आपको कोरियो एलेंटोइक मेम्ब्रेन यूज़ करना है, ठीक है, दिस इज पार्ट विच इज़ नोन एज द कोरियो एलेंटोइक मेम्ब्रेन, ओके। तो यहाँ पे अगर आपको आपको हर्पिस सिंपल वायरस ग्रो करना है, या फिर आपको पॉक्स वायरस, ओके, ग्रो करना है, या फिर आपको अगर आपको ठीक है, अगर आपको हर्पिस वायरस ग्रो करना है, आपको पॉक्स वायरस ग्रो करना है, या आपको रोजिस सार्कोमा वायरस ग्रो करना है, ठीक है, अगर आपको ये तीनों में से कोई वायरस ग्रो करना है तो आपको उसको कहाँ पे इनोकुलेट करना है, एक के इस पार्ट में, दैट इज नोन एज कोरियो एलेंटोइक मेम्ब्रेन, ठीक है। अगर आपको इन्फ्लुएंजा वायरस ग्रो करना है जो आपको कॉमन कोल्ड देता है, या फिर आपको मम्स वायरस ग्रो करना है जो आपको गालफुगी देता है, ये दोनों अगर वायरस आपको ग्रो करने हैं तो आप उसको यहाँ पे ग्रो करोगे, ठीक है, दैट इज द एलेंटोइक इनोकुलेशन, ठीक है। अगर आपको हर्पिस सिंप्लेक्स वायरस ग्रो करना है तो यू आर गोइंग टू इनोकुलेट हियर, दैट इज नोन एज द योक सैक, ठीक है। अगर आपको इन्फ्लुएंजा, मम्स या फिर न्यूकास्टल डिसीज वायरस या कोई भी बर्ड को जो इन्फेक्ट करने वाला वायरस है जिसको आप बोलते हो एवियन एडिनो वायरस, तो अगर आपको वो ग्रो करना है देन वी आर गोइंग टू ग्रो इट इन द एलेंटोइक इनोकुलेशन, ठीक है। आप यहाँ पे जो ये एलेंटोइक सैक है यहाँ पे इनोकुलेट कर सकते हो। तो ऐसे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एग पे आपको डिफरेंट वायरस कल्टिवेट कर आप कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको अच्छी ग्रोथ ऑब्जर्व करनी है तो आप अगर स्पेसिफिकली उस वायरस के लिए स्पेसिफिक पार्ट यूज़ करोगे ऑफ द एग, देन यू कैन ग्रो इट वेरी वेल। नाउ अब फिर से हम देखेंगे कि कौन सा मेम्ब्रेन या फिर कौन सा पार्ट एग में कौन से वायरस को ग्रो करने के लिए यूज़ किया जाता है। जो कोरियो एलेंटोइक मेम्ब्रेन है जो आपको मैंने यहाँ पे भी दिखाया था, तो ये जो मेम्ब्रेन है कोरियो एलेंटोइक मेम्ब्रेन, तो ये आप कैसे यूज़ कर सकते हो, तो इसको आप जनरली पॉक्स वायरस के लिए ग्रो करने के लिए यूज़ करते हो, हर्पिक सिंपल वायरस के लिए भी ग्रो कर सकते हो, अलॉन्ग विद दैट जो पॉक्स कॉजिंग वायरसेस है उनको भी ग्रो कर सकते हो, ठीक है। और जनरली ये प्लाक स्टडीज़ के लिए, प्लाक क्या, थोड़े से बड़े लेशंस जैसे स्ट्रक्चर मिलना या फिर एक सर्कुलर आपको कुछ स्ट्रक्चर ऑब्जर्व होना इन्फेक्शन में, तो दैट इज़ नोन एज द प्लाक, ओके। सम सेल किलिंग इज ऑब्जर्व, दैट इज नोन एज द प्लाक, ओके। सेल लाइज हो जाते हैं, इसकी वजह से प्लाक स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। तो अगर ऐसे वायरसेस को आपको ग्रो करना है तो यू कैन यूज़ द कोरियो एलेंटोइक मेम्ब्रेन। एलेंटोइक कैविटी आप यूज़ कर सकते हो फॉर द एवियन वायरसेस, ओके। इन्फ्लुएंजा वायरस भी, येलो फीवर वायरस, रेबीज़ वायरस, रेबीज़ आपको पता है कौन सा वायरस है, तो ये सब वायरस का अगर आपको ग्रो करना है देन यू कैन यूज़ द एलेंटोइक मेम्ब्रेन, ठीक है। एलेंटोइक मेम्ब्रेन आप यूज़ कर सकते हो। तो ये जो होता है एलेंटोइक मेम्ब्रेन, इट इज़ यूज फॉर द कल्टिवेशन ऑफ एवियन वायरसेस, क्या कि बर्ड्स को जो इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं ऐसे वायरसेस को ग्रो होने के लिए एलेंटोइक कैविटी कैन बी यूज। एमनियोटिक सैक कैन बी यूज फॉर द कल्टिवेशन ऑफ द इन्फ्लुएंजा एंड द मम्स वायरस जो आपको गालफुगी देता है या फिर आपको जो कॉमन कोल्ड देता है, ऐसे वायरसेस को ग्रो करने के लिए वी कैन यूज एमनियोटिक सैक। नाउ
प्राइमरी आइसोलेशन मतलब कि आपको प्यूरिफाइड वायरस कल्चर इस सैक एमनियोटिक सैक से मिल सकता है, तो आप इस पे मम्स या इन्फ्लुएंजा वायरस का प्राइमरी आइसोलेशन कर सकते हो। इनका ग्रोथ एंड रेप्लिकेशन भी हम डिटेक्ट कर सकते हैं यूजिंग द हेम अग्लूटिनेशन एसे, ठीक है। अलॉन्ग विद दैट योक सैक इनोकुलेशन, जो बहुत ही सिंपलेस्ट मेथड है, योक सैक में आप इजीली वायरस को इनोकुलेट कर सकते हो। तो ये जो टेक्निक है इट इज़ बीन यूज फॉर द कल्टिवेशन ऑफ सम वायरसेस एज वेल एज द बैक्टीरिया फिर कौन से क्लेमाइडिया रिकेट्सी जो डिसीज कॉजिंग बैक्टीरिया है उनका कल्टिवेशन भी आप एग में कर सकते हो, नॉट ओनली वायरसेस। तो मेनी एवियन वायरसेस जो बर्ड में इन्फेक्शन कॉज करते हैं उन वायरसेस का आप कल्टिवेशन कर सकते हो इन द योक सैक ऑफ द एग, ओके। तो इस टेक्निक का एम्ब्रियोनेटेड एग टेक्निक का एडवांटेजेस क्या है एज कम्पेयर टू द अदर टू टेक्निक्स, ये है कि इट इज़ बीन यूज फॉर द वायरस आइसोलेशन एंड ग्रोथ, ओके। इट इज़ बीन यूज्ड वाइडली, ये बहुत सी जगहों पे यूज़ की जाती है फॉर द आइसोलेशन पर्पज, फॉर द कल्टिवेशन पर्पज ऑफ व्हाट वायरसेस। नाउ वायरसेस को ग्रो होने के लिए एक आइडियल सबस्ट्रेट, आइडियल एनवायरनमेंट मिल जाता है। ऑब्वियस सी बात है, एम्ब्रियो इज अ वेरी वी कैन से न्यूट्रिशियस और वेरी मच अ सुटेबल एनवायरनमेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ वायरसेस, ओके, क्योंकि वायरसेस असेलुलर होते हैं तो दे कैन इजीली ग्रो। अलॉन्ग विद दैट इट इज़ यूज फॉर द कल्टिवेशन ऑफ मैनी बर्ड इन्फेक्टिंग वायरसेस एज वेल एज जो हमें मैमल्स को भी इन्फेक्ट करते वो वायरसेस भी आप इजीली एक पे ग्रो कर सकते हो। देन कॉस्ट इफेक्टिव, ऑब्वियस सी बात है, अंडा 5 रुपये में मिल जाता है तो कॉस्ट इफेक्टिव है। मेंटेनेंस इजीली हम कर सकते हैं, आप फ्रिज में भी रख सकते हो अंडों को। देन एम्ब्रियोनेटेड एग्स आपको इजीली कहीं पे भी मिल जाएंगे। एंड अलॉन्ग विद दैट एग्स के अंदर जो एनवायरनमेंट होता है वो बहुत ज़्यादा स्टेराइल होता है, वहाँ पे कोई भी इन्फेक्शन अंदर तो ऑब्वियस सी बात है जा नहीं सकता, तो इट इज़ अ वेरी स्टेराइल एनवायरनमेंट। देन इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर दी वैक्सीन प्रोडक्शन, ठीक है। वैक्सीन प्रोडक्शन भी कई कई जगहों पे किया जाता है यूजिंग द एम्ब्रियोनेटेड एग। इसके ज़्यादा डिसएडवांटेजेस नहीं, एक ही डिसएडवांटेज है कि आपको साइट जो होती है इनोकुलेशन की वो डिफरेंट वायरस के लिए डिफरेंट है, तो थोड़ा सा मुश्किल पड़ जाता है आपको हर चीज़ याद रखना कि कौन सी साइट पे कौन सा इनोकुलेशन करना है, ठीक है। बाकी इट इज़ अ वेरी आइडियल मेथड। जो लास्ट टेक्निक आप यूज़ करते हो फॉर द कल्टिवेशन ऑफ द वायरसेस इट इज़ द टिश्यू कल्चर, ठीक है। तो टिश्यू कल्चर जो होते हैं वो जनरली हम क्या करते हैं, तो एक डायरेक्टली टिश्यू, आपको पता होगा सेल से क्या बनता है, टिश्यू बनता है। बहुत सारे सेल आप एक साथ ले लो, इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ टिश्यू। बहुत सारे टिश्यू आप एक साथ ले लो, इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गन। एंड बहुत सारे ऑर्गन ले लो, इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ बॉडी। तो ऐसे टिश्यू का कल्चर आप करोगे या ऐसे ऑर्गन्स का या ऐसे सेल का कल्चर करोगे तो दैन इट और उस पर अगर आप वायरसेस को ग्रो करोगे देन दिस होल टेक्निक इज नोन एज व्हाट टिश्यू कल्चर। नाउ जनरली 3 टाइप्स ऑफ टेक्निक्स आर यूज। फर्स्ट वन इज द ऑर्गन कल्चर। ऑर्गन कल्चर का नाम ही क्या है, ऑर्गन, ठीक है। वहाँ पे डायरेक्टली कोई ऑर्गन यूज़ किया जाता है फॉर द कल्टिवेशन ऑफ वायरसेस। उसका एक कॉमन एग्जाम्पल है, अब जनरली ऐसे वायरसेस को ये चीज़ हम यूज़ करते हैं फॉर द ग्रोथ जो बहुत ज़्यादा पैरासाइटिक है, हाईली पैरासाइटिक, और उसका रिसेंट एग्जाम्पल है कोरोना वायरस, ठीक है। तो उसको ग्रो करने के लिए फिर ट्रैकियल रिंग कल्चर यूज़ किया जाता है। आपको पता है कोरोना का मेन टारगेट रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, तो ट्रैकियल सेल का जो कल्चर होता है वो यूज़ किया जाता है फॉर द कल्टिवेशन ऑफ कोरोना वायरस। एक दूसरी टेक्निक है दैट इज़ द एक्सप्लांट कल्चर। तो इसमें क्या किया जाता है, जो टिश्यू के फ्रैगमेंट्स होते हैं उनको प्लाज्मा में ग्रो किया जाता है और वो डायरेक्टली यूज़ किए जाते हैं फॉर द कल्टिवेशन ऑफ वायरस, और ये बहुत कम यूज़ किया जाता है, ठीक है। देन जो थर्ड टेक्निक है दैट इज़ द सेल कल्चर। सेल कल्चर के नाम में ही क्या है, सेल, तो सेल का जो इंडिविजुअल सेल्स होती है उनका यूज़ किया जाता है फॉर द कल्टिवेशन ऑफ वायरसेस। आप समझ सकते हो कितना मुश्किल होगा सेल को कल्चर करना और उसके बाद उस पर वायरस को ग्रो करना। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट बट इट इज़ बीन यूज वाइडली आफ्टर द एग इनोकुलेशन। जो सबसे कॉमन मेथड यूज़ की जाती है दैट इज़ द सेल कल्चर टू ग्रो द वायरसेस। तो सेल कल्चर जो होती है उसमें पहले तो सेल्स को ग्रो किया जाता है अंडर द कंट्रोल्ड कंडीशन। ऑब्वियस सी बात है, हमारे बॉडी पे जो सेल्स ग्रो होती है उनको वैसा सुटेबल एनवायरनमेंट, न्यूट्रिशन लगता है, तब जाके आप उनकी ग्रोथ ऑब्जर्व कर सकते हो। आपको उनको लैब में ग्रो करना है मतलब आपको आर्टिफिशियली उनको वैसा कल्टीवेशन कंडीशंस देनी पड़ेगी, ठीक है। तो ऐसे कंडीशंस में आप आर्टिफिशियली
सेल्स को ग्रो करोगे और उस सेल कल्चर का यूज़ करके वायरसेस को ग्रो करने वाले हो, ठीक है। तो ये जो सेल्स होती हैं जनरली उनको ग्लास पे या फिर प्लास्टिक के सरफेस पे ग्रो किया जाता है, ठीक है। और ग्रो भी कैसे, उनको एक ग्रोथ मीडियम दिया जाता है। तो ग्रोथ मीडियम होता क्या है, उसमें सॉल्ट सॉल्यूशन होता है जिसमें 13 अमाइनो एसिड्स होते हैं, क्योंकि अमाइनो एसिड हमारे न्यूट्रिशन के लिए, हमारे ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो हमारे सेल के ग्रोथ के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो उनको अमाइनो एसिड दिए जाते हैं, शुगर दी जाती है, प्रोटीन्स दी जाती है, काल्फ सीरम दिया जाता है, बफर, एंटीबायोटिक्स, फिनॉल रेड डाई जो रेड कलर देता है उस सॉल्यूशन को। तो ये पूरी जो चीज़ होती है इसको बोला जाता है ग्रोथ मीडियम, जिसमें अमाइनो एसिड, एंटीबायोटिक, प्रोटीन्स, काल्फ सीरम, फिनॉल रेड, एंटीबायोटिक्स, बफर, सब चीज़ें होती हैं। बफर क्यों, ताकि आपका पीएच मेंटेन हो, ठीक है। तो ये सब चीज़ों में आप क्या करते हो, सेल को ग्रो करते हो, ओके। सेल को जब आप एक सेल को अगर आप उस मीडिया में, ग्रोथ मीडिया में इनोकुलेट करोगे या डालोगे तो वो इजीली रेप्लिकेट हो जाती है और एक लेयर फॉर्म करती है, सिंगल लेयर। तो उसको बोला जाता है फिर मोनो लेयर, ठीक है। मतलब क्या, आई विल शो यू। तो उसमें क्या, एक सेल है, एक सेल अब उस सरफेस पे ग्रो होगी, उसके बाजू में बहुत सारे सेल्स ग्रो होंगे और एक लेयर फॉर्म करेंगे, दैट इज नथिंग बट दी मोनो लेयर, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। देन प्राइमरी, अब सेल कल्चर भी कोई सिंगल टाइप के नहीं होते, वो भी डिफरेंट टाइप्स के होते। तो उसमें जो पहला है वो है प्राइमरी सेल कल्चर, दूसरा है सेकेंडरी सेल कल्चर एंड थर्ड वन इज द कंटिन्यूस सेल कल्चर, ओके। जो प्राइमरी कल्चर होता है इसमें जो हमारे नॉर्मल सेल्स होते हैं, लाइक एनिमल सेल हो सकते हैं, ह्यूमन सेल्स हो सकते हैं, वो यूज़ किए जाते हैं हैप्लॉइड, ओके। देन उनको एक लिमिटेड टाइम के लिए ही हम ग्रो कर सकते हैं। यही इसका डिसएडवांटेज है कि हम उनको बार बार सब कल्चर नहीं कर सकते, एक ही बार यूज़ करो और फिर थ्रो करो, ऐसी चीज़ होती है इनके साथ। और ये आइसोलेशन करने के लिए भी यूज़ किए जाते हैं वायरसेस का, और वैक्सीन प्रोडक्शन के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छे, वी कैन से अच्छा वे है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ वायरसेस और द प्रोडक्शन ऑफ वैक्सीन्स, ओके। तो कौन से सेल्स आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, मंकी किडनी सेल कल्चर या फिर ह्यूमन एम्ब्रियोनिक किडनी सेल कल्चर या चिक एम्ब्रियो सेल कल्चर, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द प्राइमरी सेल कल्चर। नाउ द ओके, नाउ द सेकंड टाइप इज द डिप्लॉयड सेल कल्चर, ओके। तो डिप्लॉयड सेल कल्चर में क्या होता है कि डिप्लॉयड सेल यूज़ की जाती है, उसको सेमी कंटिन्यूस भी बोला जाता है, क्योंकि अराउंड 50 टाइम्स क्या किया जा सकता है, सब कल्चर किया जा सकता है। 50 टाइम्स आप इसको रीयूज़ कर सकते हो फॉर द कल्टिवेशन ऑफ वायरसेस। तो यहाँ पे डिप्लॉयड होते हैं, मतलब क्या, सेल सेम टू सेम पेरेंट सेल के जैसे होते हैं, डिप्लॉयड होते हैं, उनका क्रोमोसोम नंबर पेरेंट सेल के जैसे ही होता है। और इनका जो यूज़ होता है वो जनरली फास्टिडियस वायरसेस एंड प्रोडक्शन ऑफ वायरल वैक्सीन, ये भी वैक्सीन प्रोडक्शन के लिए यूज़ की जाती है। और कल्टीवेशन ऑफ वायरसेस जो फास्टिडियस वायरस है, ओके, जिनको स्पेसिफिक कंडीशंस लगती है, उसके अलावा वो ग्रो नहीं होते, ऐसे वायरसेस को ग्रो होने के लिए ये लोग बहुत आइडियल है। ये जो सेकेंडरी कल्चर है या फिर डिप्लॉयड सेल कल्चर है, इट इज़ बीन यूज फॉर द कल्टिवेशन ऑफ फास्टिडियस वायरसेस। फास्टिडियस मतलब क्या, जिनको स्पेसिफिक कंडीशंस लगती है फॉर द ग्रोथ। इसके एग्जांपल है फिर ह्यूमन एम्ब्रियोनिक लंग स्ट्रेन, रिजिस एम्ब्रियो सेल स्ट्रेन, ओके। देन कंटिन्यूस सेल कल्चर मतलब क्या, यहाँ पे कंटिन्यूसली आप सेल कल्चरिंग कर सकते हो। यहाँ पे जनरली कैंसर सेल, आपको कैंसर सेल की कैरेक्टर पता होगा, कैंसर सेल बहुत रैपिडली डिवाइड होते हैं और वो अमर होते हैं, वो किल नहीं होते, तो इसकी वजह से यूज़ किए जाते हैं। और इनको कहा जाता है कंटिन्यूस सेल कल्चर, क्योंकि ये कैंसर सेल का यूज़ करके हम कल्चरिंग करते हैं, हम उसके लेयर पे लेयर बनाते हैं, सो दैट्स वाई इट इज़ नोन एज द कंटिन्यूस सेल कल्चर, ओके। तो यहाँ पे वी कैन यूज़ इट अगेन एंड अगेन, दैट्स वाई इट इज़ अ मेजर एडवांटेज। एंड हम इनको मेंटेन भी कर सकते हैं, बहुत सारे दिनों तक हम उनको मेंटेन करके रख सकते हैं, -70 डिग्री सेल्सियस पे स्टोर करके रख सकते हैं। तो ये कैंसर सेल से बने हुए होते हैं, इसलिए इनका वैक्सीन प्रोडक्शन में यूज़ नहीं किया जाता, क्योंकि ये फिर बॉडी में जाएंगे तो कैंसर फैला देंगे, सो दैट्स वाई इट इज़ नॉट यूज फॉर द वैक्सीन प्रोडक्शन। तो इसके एग्जाम्पल है हेला, ह्यूमन कार्सिनोमा सर्विक्स सेल लाइन वायरस सेल लाइन। देन देयर इज द हेप2, ह्यूमन इपीथेलियोमा लैरिंग सेल लाइन, BHK21 बेबी हैमस्टर किडनी सेल लाइन। ये कुछ एग्जाम्पल है। हेला सेल लाइन बहुत कॉमन एग्जाम्पल है, जो एग्जाम्पल है ऑफ द कंटिन्यूस सेल लाइन, ओके। तो इसका एडवांटेजेस क्या है कि इट इज़ वेरी ईजी
ब्रॉड स्पेक्ट्रम, चीपर एंड सेंसिटिव। सेंसिटिव मतलब क्या, इजीली इन्फेक्ट हो जाते हैं वायरसेस से, या वायरस प्रोडक्शन इजीली हो जाता है इन पे। चीपर है, ज़्यादा खर्चा नहीं लगता। ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, मतलब क्या, बहुत सारे वायरसेस को अलाउ करता है ग्रो होने के लिए। अलॉन्ग विद दैट कल्टीवेशन हम इजीली कर सकते हैं, सेल लाइन बनाने के लिए ज़्यादा मेहनत नहीं लगती, ठीक है, लेबर कॉस्ट नहीं लगता। डिसएडवांटेज ये है कि टेक्नीशियंस या फिर ट्रेंड टेक्नीशियंस हमें लगते हैं जिनको पता है कि कैसे करना है। कोई भी आया जाया इंसान नहीं कर सकता, हमें ट्रेंड और प्रोफेशनल लोग चाहिए होते हैं ये टेक्निक करने के लिए फुल टाइम बेसिस पे, तो इसकी वजह से थोड़ा सा खर्चा हो जा सकता है। देन अलॉन्ग विद दैट यहाँ पे जो है स्टेट हेल्थ लैबोरेटरीज एंड हॉस्पिटल लैबोरेटरीज डू नॉट आइसोलेट एंड आइडेंटिफाई वायरसेस इन द क्लिनिकल वर्क, ठीक है, उनका बस काम है उनको स्टडी करना, वो इस सेल लाइन की मदद से आइसोलेशन का काम नहीं करते, ठीक है। अलॉन्ग विद दैट ये जो टिश्यू या सीरम एनालिसिस हम करते हैं, इसको फिर आगे जाके हमें सेंट्रल लैबोरेटरीज में भेजना पड़ता है फॉर द आइसोलेशन ऑफ द वायरसेस, सॉरी आइडेंटिफिकेशन ऑफ द वायरस। हम बस आइसोलेशन कर सकते हैं स्टेट लेवल पे, हमको उनको आगे भेजना पड़ता है सेंट्रल लैबोरेटरीज में फॉर द आइडेंटिफिकेशन पर्पस। आइसोलेशन हम कर सकते हैं, कल्टीवेशन भी कर सकते हैं, लेकिन हमें आइडेंटिफिकेशन करने के लिए हमें उनको आगे के लेवल में भेजना पड़ता है, ठीक है। अगर हमें पता करना है कि उन सेल लाइन में वायरस ग्रो हो चुका है कि नहीं, तो हम वो कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं, तो साइटोपैथिक इफेक्ट। अब क्या होता है कि सेल के ग्रोथ में कुछ चेंजेस आपको दिखे तो हम माइक्रोस्कोपिकली उन चेंजेस को ऑब्जर्व कर सकते हो, या फिर हमें कुछ लेशंस या कुछ रैशेस उन सेल लाइन पे अगर दिखे तो वी कैन कंक्लूड कि वायरस ग्रो हो चुका है, ठीक है। तो यही उनका अगर शेप वगैरह मॉर्फोलॉजिस्ट या फिर शेप साइज वगैरह अगर चेंज हो जाए सेल लाइन का, तो हम कंक्लूड कर सकते हैं कि वो सेल लाइन अभी वायरसेस की वजह से चेंज हो रही है, एंड दैट्स वाई वी कैन कंक्लूड दैट द वायरस इज बीन ग्रोन, वायरस इज बीन आइसोलेटेड, एंड फॉर दैट पर्पज वी कैन सेंड दैट वायरस infected cell line for the identification purpose to central laboratory, okay, so that's about it। तो ऐसे viruses को lab में cultivate करने के लिए we can use 3 techniques, that is the animal inoculation, we can use the embryonated eggs, and also we can use the third one, that is the tissue culture or the cell culture, okay। So that's about it. I hope you have understood the lecture. If not, or if you have any query, please do contact me, okay, thank you।